We could start, sir? Yeah, Good please. morning, Kishore, sir. Most respected guest speaker for the day, Dr. G. Kishore, sir, who is a principal and regional director, Sports Authority of India, lectured by National College of Physical Education. Dr. Sanjeev Patil, who is a co-host. Mr. Pranesh and Harihar. All my dear PE teachers from across the country, a warm welcome to one and all to the PE and community coaching program exclusively for women. आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत है. I take this opportunity to introduce our guest, renowned speaker, Dr. Kishore Gopinathan, sir. Sir is a native of Pandalam, Kerala. He did his post-graduation, MPhil and PhD in physical education from Lakshmibai National University of Physical Education, Gwalior. Sir joined Sports Authority of India in 1986. He served Government of Kerala as Additional Director and Director of Sports and Youth Affairs, Government of Kerala and Secretary Kerala Sports Council, different tenure and deputation from Sports Authority of India. So also served as Director Personnel, SAI Head Office, NSCC Calcutta and NSSC Bangalore, and Dr. Kishore sir assumed charge as Principal, SAI LNCP Trivandrum in 2011. So as a recipient of quite a few recognition awards, he's traveled to many countries in the world on international assignments. He holds a number of important academic positions at the University of Kerala. He's also an evaluator of PhD thesis. So has been nominated to various important committees by the Government of India and Government of Kerala, member of the Selection Committee for Dhyan Chand Award, Chairman Committee to review guidelines for selection criteria for SAI schemes, convener of the Technical Committee, member of the Executive Board for the 35th National Games, member of the Technical Committee constituted for implementation creation of Delhi Sports University, member of the committee constituted by the Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India for formulation of vision document for the next 15 years, 7-year strategic plan and 3-year action plan document up to 2013 respective Department of Sports. Member of the Indian delegation to observe the Rio Olympics 2016 from 4th to 14th August 2016. Sir has organized many sports-related workshops at international and national levels, has attended present papers in many important sports-related seminars in the country and abroad. Indeed, we are blessed and honored to have such an eminent personality who is not only a great administrator, great academician, but a visionary and a person who's wanting to strengthen the physical education fitness program for the country. And sir has got, again, his mission to see that each one is fit. A person who not only preaches what he speaks, but also practices it. On behalf of the Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Minister of Women and Child Development, Lakshmibai National College of Physical Education, a warm welcome to our dignified speaker, Kishore sir. Sir, a warm welcome to you. I also welcome Dr. Sanjeev Patil to this program. I want to welcome all my dear teachers, I say bubbling girls who are energetic teachers from across the country. A warm welcome to each one of you. Over to you, Kishore sir, for your session, please. Thank you, Dr. Usha, and the introduction. All my distinguished and beloved physical education teachers and community coaches from all across the country, other co-panelists, ladies and gentlemen. I am taking the subject of roles and responsibilities of physical education teachers. This is a very is subject. The topic as such, it's very simple and known to everyone. आपको सबको पता है मेरा जो आज का टॉपिक है वो है जिम्मेदारी और भूमिका शारीरिक शिक्षकों का. तो ये आपको बहुत सरल लगते होंगे और इसमें मैं ये हर एक को पता भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ करंट कॉन्टेक्स्ट में, अभी का जो वातावरण में, अभी प्रेजेंट 21st सेंचुरी ट्रेंड्स, अभी का जो चेंजेस हो रही है, बदलाव जो हो रही है, इसकी कॉन्टेक्स्ट की प्रकार एक शारीरिक शिक्षक का जिम्मेदारी और भूमिका क्या होते हैं. यह सिर्फ रिफ्रेशिंग के लिए है, आपको सबको एक बार और आपका नॉलेज में लाने के लिए. आपने सब सीखा है, पढ़ा है, आपने हर बार सुनते रहते हैं, लेकिन एक बार और इसको एक बार और याद करना, समझना उचित रहेगा. It will be good on your part. Just we should once again refresh ourselves on the topic of the roles and responsibilities of physical education teachers. I would like to mention it because most of the time it is misinterpreted. कई बार जो है इसको ये जिम्मेदारी और
भूमिका जो शिक्षकों का है, शारीरिक शिक्षकों का मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो कई जगह में कई तरफ के ये बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, कराया जाता है, लेकिन सच्चाई तो एक ही है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, इसका बारे में एक थोड़ा सा पहले से एक retrospectively from the back, how exactly the Indian tradition and culture accepted, how they perceived the physical education teachers from the time immemorial and what is now. So it is a quick journey on how we perceived the role and responsibilities of physical education teachers और शारीरिक शिक्षक। शारीरिक शिक्षक जो है वो बहुत पहले से ही वो हमारा ट्रेडिशन में, हमारा एजुकेशन में, आप जानते होंगे कि इंडिया का, हमारा भारतवर्ष का जो शिक्षा का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। करीबन 400-4,000 साल पहले हमारा 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला वगैरह। तो हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है शिक्षा का क्षेत्र में, जो काफी पुराना है। इसमें जो है शारीरिक शिक्षा भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको अलग नहीं देखा पाया, वो तो शिक्षा का साथ साथ ही देखते थे। शारीरिक शिक्षा से एक अलग नहीं देखा जाता था। It was always perceived and conceived physical education and sport as a part of our curriculum, educational curriculum in Indian tradition and history and our culture. This is quite evident if you trace the history. I will give you an example of how exactly education by definition has got the ingredient of physical education and sports, and how from time immemorial in the tradition and history of education, the physical education was inbuilt and was a part of our education from very long time, and how it is now again how we have missed it in between, how we forgotten it in between, missed it in between, skipped it in between, and now how we have again come back to our old philosophy that physical education should be perceived as a part of education as per the new education policy. तो ये पहले से थे, ये कुछ नया चीज नहीं थे। हमारा जो एजुकेशन का जो शिक्षा का बारे में जो भी निर्वचन थे, डेफिनेशंस थे, उसके अंदर जो अंतर्लीन थे ये फिजिकल एजुकेशन और उसका साथ साथ थे। लेकिन कई बार जो है हमारा हिस्ट्री में हम देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, तो इसको हमारा जो शारीरिक शिक्षा को कई बार जो है हम भूल गए हैं या निगलेक्ट किए हैं, या इसलिए इस तरफ का जो वजह से इनको कई कुछ परिणाम, कई कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, उसका बारे में भी हम सीखेंगे। और उसके बाद आप भी इसी वक्त इसका क्या भूमिका और जिम्मेदारी है, तो इसका एक रिट्रोस्पेक्शन, इट इज एन ओवरव्यू ऑफ द रोल, जिम्मेदारी और भूमिका बारे में एक ओवरव्यू है। क्विकली जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन आपको अगर कुछ इसमें संदेह है, आपको कुछ भी आप लिख के दे दीजिए, हम आपको इसका जानकारी उसका पूरा लिख के आपको देने में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में, so this is, if you want to know what is the Indian, as per the latest our policy, what is the government's policy now on physical education and sports. This is quite evident with what our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has said in Mann Ki Baat during launch of Khelo India, that honorable Prime Minister said that sports should become a part of our lives. If we are a young nation, our youth should get manifested in the field of sports as well. Sports means physical fitness, mental alertness, and personality enhancement. What else one need? Sports is a way is a recipe that brings people together. So this 2 paragraphs, small sentences, very clearly underlines what the presently government is giving, the union government is giving, what is its perception, what is its policy about physical education and sports. So this is it itself is clear that how it has become a part. It is very clear that if you are the young nation, we are a young nation because we have got the maximum youth population. We are the youngest nation because when the rest of the country becomes old by larger adult population, we are having maximum youth population. हमारा जो है भारतवर्ष ऐसे है कि सबसे ज्यादा हमारा जवान लोग भारतवर्ष में दुनिया में, इसलिए हम दुनिया का जो जवानी जो है जो इन भारतवर्ष में है,
एंड अगर आप उनको हमारा जिंदगी में और फील्ड में वो देश का भलाई के लिए और हर एक का भलाई के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो खेल को प्रभाव देना, खेल को पूरा जोर देना बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत ही खास जिम्मेदारी माने जाना चाहिए. You should perceive in the right perspective. If you want to look into the our young nation to prosper, get manifested in the, we should give proper focus and emphasis to sports also. और इसमें जो है स्पोर्ट्स का जो भी इंग्रेडिएंट है, जैसे फिजिकल फिटनेस है, मेंटल अलर्टनेस है, पर्सनालिटी एनहांसमेंट है, ये सारे चीज जो है हमारा खेल जगत में शारीरिक शिक्षा में जुड़ा हुआ है. ये हमारा माननीय भारत प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है. इसका मतलब ये है कि हम हमारा जो आज का टाइम में जो गवर्नमेंट किस तरफ से शारीरिक शिक्षा और खेल को प्रभाव देते हैं, उसके बारे में ये दो सेंटेंस बिल्कुल इसमें लाइट डालते हैं. नेक्स्ट प्लीज. एक बार हम पीछे मुड़ के देखें कि एजुकेशन का क्या निर्वचन था और इसमें कैसे शारीरिक शिक्षा का कैसे आपको रोल क्या था. आप देखिए ऋग्वेदा में जो है ये लिखाया है, एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. सेल्फ रिलायंट, अगर आप सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हो, अपने आप को सारे चीज का जिम्मेदारी आपको खुद आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, तो वो तो शिक्षा से पाए जाते हैं. अगर इसका मतलब जो है एक मैन, यू हैव टू हैव ए होलसम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. उपनिषद में ये है, एजुकेशन इज दैट whose end product is salvation. So you see how deep it goes. You want to have, you know, attain salvation, that it can be attained only through education, and the end product is salvation. And it is said by Shankaracharya that education is the realization of self. If you want to realize yourself, to realize what you are, your own self, you have to, it is possible only through education. It is the via media for realization of self. And Kautilya said, education means training for country and loving for the nation. Plato, education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. Aristotle, education is the creation of a sound mind in a sound body. All these definitions carry that, you know, it is, if you want to make a man selfless, if you want to attain salvation, if you want to realize yourself, if you want to love your country, you want to become patriotic, and if you want to have feel the pleasure and pain at the right moment, if you want to have the right sense, and if you want to have the right sound body, in a sound mind in a sound body, all definitions have got the true meaning of शिक्षा. शिक्षा का बारे में ये सारे निर्वचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाता है इसमें जो है ये शारीरिक शिक्षा या शिक्षा खेल शारीरिक शिक्षा का जुड़ा हुआ है. क्योंकि जब भी आप होलसम एजुकेशन को प्रमोट कर लेते हैं, सेल्फ रिलायंट जब होता है, उसको खुद अपने पैर में खड़े हो सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, और जब उसको ठीक तरह से सोच सकते हैं, अच्छा बुराई का आपको ठीक तरह से आपको पता चल जाता है, और जो साउंड माइंड आपका पास एक हेल्थी माइंड हो जाता है. ये सारे चीज के लिए आपका जो शिक्षा का वाया मीडिया से शिक्षा से पाए जाते हैं. तो शिक्षा जो है वैल्यू बेस्ड होना चाहिए. हर चीज से इंक्लूड हर कंपोनेंट्स, हर इंग्रेडिएंट्स को ध्यान रखते हुए होलसम प्रोसेस है. ये जो है जो निर्वचन जो है उसमें से आपको बिल्कुल इसमें स्पष्ट किए जाते हैं. और आप पुराना देख लीजिए, और हमारा जो भारतवर्ष का जो ट्रेडिशन ऑफ बैलेंस्ड एजुकेशन, we had always been the epicenter for knowledge. We had been doing commendably well in all fields. That we have produced the bright, brilliant minds in the world. Even now, our Indian mind are said to be the most sought after in various sectors. हमारा जो है संस्कृति जो है, हमारा जो इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है भारत का और पुराना, ये पूरा दुनिया में माना जाता है. क्योंकि आप देख लीजिए पीछे मुड़ के हमारा संस्कृति, हमारा शिक्षा, हमारा जो कई तरफ का भारत की हर जगह में जो हुए सांस्कारिक विविध तरह का कला, सांस्कारिक शिक्षा और खेल का हर भाव है, ये सारे चीज से प्रभाव ये हो जाते हैं कि ट्रेडिशनल और बैलेंस्ड एजुकेशन हमारा भारत में थी.
ये सिर्फ जो है लिखा पढ़ी में नहीं होते थे, ये हर चीज को ध्यान देते हैं। एक आदमी का जो पूरा हर भाव का विकसन, हर भाव का जो डेवलपमेंट के लिए में प्रभाव जाते थे, ये सिर्फ लिखा पढ़ी में नहीं थे, ये पुराना भारतवर्ष का जो ट्रेडिशन से माने जाते हैं। आप इसमें स्पष्ट आप देख लेगा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वैल्यूज है, इसमें से पता चल जाता, जो नृत्य रूप थे, जो हमारा जो कई तरफ का जो म्यूजिक सिस्टम जो ये थे प्रिवेलेंट थे, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स से हमारा जो कई तरफ का इंडिजीनियस स्पोर्ट्स थे, हमारा इस तरफ का कई हर चीज में पता चल जाता है कि हमारा एजुकेशन जो भारतवर्ष का जो शिक्षा जो थे बैलेंस्ड थे, ये एक तरफ से नहीं जाता था, ये फोकस वन साइडेड नहीं था, वैल्यू बेस्ड था, टोटल था। तो और एजुकेशन का मतलब यही है, जब आप एक साथ आप उसको फोकस इसमें से एक कंपोनेंट के अंदर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो वैल्यू बेस्ड नहीं होता, वो शिक्षा का जो निर्वचन और शिक्षा का मीनिंग और डेफिनेशन से व्यतिचल और उसको जो डिविएट हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्रेडिशन एंड ऑफ बैलेंस्ड एजुकेशन होना, बैलेंस्ड एजुकेशन के बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बैलेंस्ड एजुकेशन में आपको ये हमारा संस्कृति में, हमारा ट्रेडिशन में हमेशा वो हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र में ये जुड़ा हुआ था, हर चीज़ का बैलेंस होता था। और मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा जो महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन ने जो डेफिनेशन दिया है, अगर आप एक बार सुन लेंगे तो इसमें भी ये बहुत स्पष्ट है। ये आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं इसको रीट्रेट इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें से कई तरफ का जो विलंब हुआ है, इसमें कई तरफ का जो है डिविएशन हुआ है, इसलिए एक बार और इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का टाइम में, अभी का जो वक्त टाइम में जो है खेल शिक्षा का भूमिका ठीक तरफ से समझना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। Education results in the all-round development and growing out of the best in child's body, mind and spirit. देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने ये बताया है कि चाइल्ड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द इन द चाइल्ड्स माइंड, mental faculty, body, physical faculty and spiritual faculty, emotional or spiritual faculty. So it is education is said to be a combination of all. When you want to mold a child, when you want to bring him up, all round drawing out of the best, to get the best out of him, whatever is inborn, what are the qualities which are in him, what all are disposed in him, एक बच्चे के अंदर जो भी उनका qualities है, जो भी उनको जो बाय बर्थ हेरिडिटी से और उनका जो है उसका अंदर जो भी आप देख रहे हैं कि उसका माइंड जो है सुपर कंप्यूटर है, उसका बॉडी जो इतना ताकत है उसके अंदर, उसको आपको पता नहीं है, हर एक को हर चीज की इसका एक ताकत उनका साथ जुड़ा हुआ है। और स्पिरिचुअल है, जो आदमी को दूसरे से जो दूसरे क्रिएशन से जो उसको स्पेसिफिक हो जाता है, वो तो स्पिरिचुअल से है। You make, what makes the man more different than the other creations is because you have got the spiritual sense in you. You've got a spirit in you. You are not only a person who has got the mind or mental faculty, you are also being spiritual. So that was been emphasized in Indian tradition. The spirituality is something which was given a lot of priority in Indian tradition and culture, and it was a part of the system. So it is, if you want the education to be wholesome, and if you want, the Mahatma Gandhi himself says, our father of nation, if you want to make the all-round development, and drawing out of the best can only be possible through the development of the child's mind, body and spirit. And you see Swami Vivekananda ji जो है पूरा दुनिया जो सेंट के नाम से माने जाते थे, महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया कि you will be nearer to heaven through football than through study of Gita. आप देख लीजिए कितना सोच था इनका, अगर आप फुटबॉल खेलेगा तो आप बिल्कुल हेवन मीन्स सैल्वेशन, सब नजदीक होगा, ज्यादा नजदीक होगा जो और आप रिलीजियस होने से जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आपको आपका इसका एक जो भी पार्टिसिपेंट है उसको इतना ज्यादा उनको, अगर आप सही तरफ से खेल जगत में आते हैं, शारीरिक शिक्षा में आते हैं, उसका मन तन सब चीज जो है इतना क्लीन हो जाते हैं, इतना साफ सफाई हो जाता है, इतना सुधर जाता है उसका क्वालिटीज, उसका कैरेक्टर, और इसका जो है वो बिल्कुल उनका आइडियल सिटीजन बन जाता है। वो बिल्कुल
एक्सेम्पलरी हो जाता है, एक्सेम्पलर इन कैरेक्टर बिल्डिंग में उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है कि अच्छा स्पोर्ट्समैन जो है गुड अच्छा कैरेक्टर का होगा. A good sportsman will always bear a good character. He will have a good personality. Because if he takes sportsmanship is in sportsmanship जो है it is equivalent to citizenship, go ideal citizenship. So that is what it said by Swami Vivekananda ji, that if you will be nearer to heaven, that is you can see that previous definition also, it is said that you can attain salvation through education. So I would like to combine this both. The salvation is possible through education. The ultimate goal of education is salvation. Salvation is going to heaven. If you want to reach heaven, you can attain it through football. That means it gives the total education. Football or sports or शारीरिक शिक्षा will give one person total education. पूरा शिक्षा आपको मिल जाता है, पूरा उसका खेल जगत से ताकि आप salvation आपको heaven मिल जाए. Next please. और मॉडर्न वर्ल्ड का भी डेफिनेशन देख लीजिए. एजुकेशन कैन बी डेलिबरेट एंड थॉटफुल एंड ए प्रोसेस ऑफ ट्रूथ एंड पॉसिबिलिटी. Education helps people to live their lives well as they can. This is only the language is different, but it is the same as the definition which in the Indian tradition that's given. So it can be deliberate, full and hopeful, and inviting truth and possibility. What is truth? Truth is self-realization, and education helps people to live their lives as well as they can, because you can have full total development. You can realize yourself, your own self. You can realize your own potential. And then what happens once you realize your potential, you can live your lives as well as they can. So education is the process of inviting truth and possibility, of encouraging and giving time to discovery. It is a process of living. That is by John Dewey. This is exactly the same the definitions which carry in Indian tradition too. So इसका दोनों मीनिंग, अगर आप दो ये डेफिनेशन का 1916 दे जो पुराना हमारा 2000 साल पुराना डेफिनेशन से ये दोनों ना देखेंगे तो इनका मतलब जो है एक ही है. तो सेल्फ रियलाइजेशन का है, ट्रूथ का है, और लिविंग लाइफ्स वेल एंड as good as with a quality life. That is what ultimately education means. So, and what is education? Is it education which starts from the schooling and ends at graduation or post graduation? No. शिक्षा जो है ऐसे नहीं है कि आप जो स्कूलिंग से शुरू हो जाता है और सब कई लोग हैं जो सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी से खत्म हो जाता है, किसी का जो है ग्रेजुएशन से खत्म हो जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन से, कई लोग जो पीएचडी होते हुए ना. शिक्षा का जो है आपको पता है कि हर हमारा जो जिंदगी में हर वक्त में एक तरफ का या अन्य तरफ का जो है शिक्षा जो पाए जाते हैं. ये जो शिक्षा जो है वो सिर्फ ये नहीं है जो सीखता है जो मेंटली नहीं है, इसमें ये दोनों तरफ का भी जोड़ा हुआ है शिक्षा के साथ, जो फिजिकल भी और मेंटल भी. और इन्फेंट एजुकेशन आप जानते होंगे कि आप लोग सीखा है. इन्फेंट जो है जब पैदा होता है तब से ये मूवमेंट से जुड़ा है. एजुकेशन begins with movement, is a learning of movement, human movement. Life is something which moves. Life is in a cycle. It's a cycle which moves. It keeps on moving. It is never stagnant. So education is something which moves from womb to tomb. Womb is when the child is conceived. एक बच्चा जब वो उसका जो माँ का गोद में जिनका रूपांतर होता है, वो जो उसका जो होता है तब से लेके उसका शिक्षा शुरू हो जाती है. जो माँ कहते हैं, माँ का जो विचार है, माँ का जो सोच है, वो जो खाता है, न्यूट्रिशन है, और उनका उसका शिक्षा में जुड़ जाता है. इसमें जो है जो इन्फेंट एजुकेशन में प्रीनेटल स्टेज में उसका माँ का साथ उनका शिक्षा है. माँ अगर अच्छा ध्यान देते हैं, अच्छा विचार उनको है, अच्छा ध्यान जो है सही तरफ से उनका इमोशन कंट्रोल करते हैं और सही तरफ से जीते हैं, तो वो बच्चा के ऊपर उसका प्रभाव है. तो ये एजुकेशन हो गया उनका. वो माँ भी है, माँ तो उसका सबसे गुरु है, शिक्षक है, जो उसका जब बच्चा पैदा हो तब से जेके उनका एजुकेशन शुरू किया जाता है. तो माँ जो है अपने बच्चे जो है जो कंसीव्ड है उसको शिक्षा अपने आप देते रहते हैं. जो खुद वो करते हैं वो उसका माइंड, इन्फेंट का माइंड के अंदर भी और बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं. जो खाते हैं
उसका अच्छा खाना खाता है, अच्छा न्यूट्रिशन हो, वो उसका इन्फेंट का भी जो उनके कंसीव्ड है उसका हेल्थ में उसका प्रभाव है। और इसको जितना अच्छा सोच है, उसका विचार है, उतनी तरफ से उनका मानसिक रूप का तब से लेके उनका जो फॉर्मेटिव स्टेज में उनका जो विचार ठीक तरफ से होगा। तो इन्फेंट एजुकेशन है वो तो एक बार जब पैदा हो जाता है उसका जो परिणाम हो जाता है। जब एक once the child is born, you can see that the child comes to the earth with a cry. What does the child do immediately after is born? It is, it cries very bitterly. जो इसलिए that is said that it is the first exercise it does in after being born. जो एक बार चाइल्ड बच्चा पैदा हो जाता है, सबसे पहले जो व्यायाम है उनका शिक्षा जो है उसका जो रोना है वो खुद ही एक्सरसाइज। और रोने से क्या होता है, रोने से उनको आपको पता होंगे कि उसका जो पूरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिस्टम्स ठीक हो जाते हैं। और जो इन्फेंट स्टेज में भी और जो जब प्रीनेटल स्टेज में भी ये चाइल्ड बच्चा जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट्स तो किए जाते हैं, हाथ पैर तो थोड़ा बहुत हिला लेते हो, तो पता है, जो डॉक्टर को भी पता है, गायनेकोलॉजिस्ट को भी, और जो है मादा को भी पता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट्स उनका जो प्रीनेटल स्टेज में ही है वो भी उनका व्यायाम होता है, उसका शिक्षा होता है, शारीरिक शिक्षा होता है। अब जो एक बार पैदा हो जाता है तो वो बिल्कुल रोने लगते हैं। रोने इसलिए, रोने से क्या होता है, रोने के उनका पूरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फंक्शनिंग शुरू कर लेते हैं, उसका सिस्टम उसका क्लियर हो जाता है। अगर आप रोया नहीं है तो क्या है मतलब, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी है, इसका जो है हेल्थ इतना ठीक नहीं है। तो उसका जो व्यायाम को जो प्रक्रिया है वो एकदम पैदा होने से शुरू हो जाता है। फिर उनका साथ लेके वो पैदा होने से लेके उनका मूवमेंट आप वॉच कर लीजिए, हर मूवमेंट जो है supine lying position with the womb, then prone lying position, coming to the crawling stage, going to crawling, then getting up, walking, running, jumping, and then on. At each stage of its growth, there are certain movements, there are certain necessary movements, which is a part of their growth, which the child, the individual has to perform at all stages of life. तब से लेके, जब से पैदा हो जाते तब से लेके हर एक व्यक्ति का जो है एक हर स्टेज को ग्रोथ के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, और कुछ ना कुछ है जो मूवमेंट है जो नेसेसरीली जो उनको करना जरूरी होता है। जो आप जो मैंने बताया, जैसे कि अगर आप बच्चा जब प्रीनेटल स्टेज में मूव नहीं किया तो दैट इज अ डेफिशिएंसी। अगर पैदा होने के बाद ठीक तरफ से उनका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करने के लिए रोया नहीं तो वो भी डेफिशिएंसी है। क्राउलिंग, इफ इट इज नॉट coming into crawling stage, and if it is not getting up, if it is not walking, if it is not jumping, if it's not, so each stage of growth has got certain movements which is required for that person to move. That is why physical education also is called as movement education. We study the movements of each child, we study the movement of each individual. It doesn't confine to a stage where to the preschool, toddler education, preschool, but at each stage of education. And you can say that you have got different stages, maybe like preschool, upper primary, higher secondary, secondary, then higher education. After that, there is no proper sequence, there is no adhered sort of physical education procedures, but there are skill development. If you want to keep the movement, if you want to keep yourself healthy, you have to have a certain movements education in the form of physical to keep yourself healthy. To keep yourself healthy. अगर आपको आपका हेल्थ में ध्यान देना है तो जो आपका शिक्षा जो है फॉर्मल एजुकेशन के बावजूद भी, जो स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन का बावजूद भी, आपका स्किल एजुकेशन के साथ आप जब काम करेंगे अपने जहां भी हो, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या किसी तरफ का हो, या बिजनेसमैन हो, या एग्रीकल्चरिस्ट हो, और जो भी स्किल आप करते हैं उसका साथ डेवलपमेंट के साथ साथ आपका मूवमेंट भी होना जरूरी है। ऑनररी एजुकेशन आप पाते हो, उसके बाद जो एक बार आप उसके बाद सर्वाइवल एजुकेशन में आ जाते हो, लेटर स्टेज ऑफ अडल्टहुड में आ जाते हैं, तब भी आपका मूवमेंट जरूरी है। और लास्ट में पोर्टफोलियो एजुकेशन, अगर आप व्हील चेयर में हो जाते हैं, अगर स्टेज में आ जाता है 80-90 में आ जाता है, तब भी मूवमेंट जरूरी है। और आप अगर किसी को आप कुछ ज्यादा बीमारी हो गया और
बेड रिडन हो गया तब भी फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं, उसको अगर सुधारना है तो वो बेड में जाके आईसीयू तक जाके अगर उसको रिहेबिलिटेट करना है तो एक्सरसाइज करा देंगे। जब एक बार मेडिसिन का बात होगा, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन के अंदर लास्ट स्टेज में भी 80-90 में भी आपको एक्सरसाइज मूवमेंट करना जरूरी है। इसलिए जो है एजुकेशन जो है वॉर्म टू टॉम है, मेंटली भी आप सीख जाते हैं कुछ, स्पिरिचुअली भी सीख जाता है, एट द सेम टाइम फिजिकली भी आपका ये जो मूवमेंट जो है, शिक्षा का जो परिणाम है, शिक्षा का जो गतिविधि है, वो जो है जैसे आपका कंसीव होने से तक आपका आखिर एंड तक आपका सिर्फ दैट वोम फ्रॉम द कंसीव फ्रॉम द टॉम तक उसका दिशा है, तब तक उनका आपका शारीरिक शिक्षा भी जुड़ा है। इसलिए मैं बात चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षक को इस देश में ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिटी कोचेस भी है इसके अंदर, जो आपका जो ध्यान जो है, आपका जो भूमिका है और जिम्मेदारी है, सिर्फ बच्चों को अपने क्लास में पढ़ाना सीमित नहीं है। आपका जो अगर आप ठीक तरफ से लेते हो तो हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन का जो पूरा शारीरिक शिक्षा उनको बचपन से लेके अगर एंड तक देने का जिम्मेदारी और भूमिका जो है खेल शारीरिक शिक्षकों का ऊपर, और आपको वो निभाते हैं या नहीं है ये अलग बात है। लेकिन अगर आप सही तरफ से देखते हैं तो ये जिम्मेदारी जो है उसको बताने का, सबको सिखाने का, बताने का और समझाने का जो जिम्मेदारी हर बार जो है शारीरिक शिक्षक का है। इसका मतलब है हेल्थी माइंड इन हेल्थी बॉडी। आपको ये जिंदगी, पूरा जिंदगी पर एक आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करना है, हेल्थी लिविंग, हेल्थी माइंड होना है, हेल्थी बॉडी होना है, तो उसका जो डॉक्टर से नहीं होता, ये चीज तो है डॉक्टर से नहीं है, कोच से नहीं होगा। कोच जो है कोचिंग एक स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस के लिए दिए जाते हैं, वो उनको जो है मेडलिस्ट बनाने का है, उनका नहीं है। ये किसका है ये जो जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी आप हमारा है, शारीरिक शिक्षकों का है ये जिम्मेदारी, क्योंकि हर एक को बताना है। और भारतवर्ष में ये ज्यादा इसका असर है क्योंकि हम सबसे ज्यादा अभी यूथफुलनेस का कंट्री, हमारा ऊपर सबसे ज्यादा यंग माइंड है, हमारा यूथ जो है पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इनको मोल्ड करना और इनका फिजिकल एजुकेशन करना, फिजिकल डेवलपमेंट देखना, वैल्यू एजुकेशन देखना, स्किल डेवलपमेंट देखना, लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट, ये सारे चीज जो है का देखभाल करना और उसको सुझाव देना, उसको समझाना, उसको बताना, उसको जो भी शक है दूर करने का, ये जिम्मेदारी और भूमिका भी शारीरिक शिक्षकों का जिम्मेदारी के साथ आ जाता है। So, you know, in physical education, you build knowledge, you build skills and attitudes, and lead to a social and lead active social lives, and balanced education that gives children and young people physical skills and fitness, motivate you to be active, social and emotional skills to engage with others, cognitive development, movement education, और active lifestyle. अगर आप देखते हैं कि एनवायरमेंट कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट, तो इसमें क्या, जैसे मैंने पहले बताया, ये चीज को आप एक बार देख लीजिए कि आपको इमोशनल पूरा जो सेल्फ का डेवलपमेंट, स्पिरिट का डेवलपमेंट देखना है, इमोशनल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का, टू गेट दम सोशल, टू गेट दम विथ मोर सोशल स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स, ये हर चीज का जो बैलेंस्ड एजुकेशन शारीरिक शिक्षा से हो जाते हैं। तो आपको एक तो नॉलेज ज्यादा, आप उनके ऊपर ज्यादा नॉलेज, जानकारी दे देते हैं, उनका स्किल्स को रिफाइन कर लेते हैं, उसका एटीट्यूड टू लीड एन एक्टिव लाइफ, टू चेंज देयर एटीट्यूड टू लीड एक्टिव लाइफ, ये भी आप शारीरिक शिक्षा से आप उसको बता सकते हैं। सो इट इज अ बैलेंस्ड एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज अ बैलेंस्ड एजुकेशन वेयर यू train oneself or one's spirit with all the required components of cognitive, not emotional, physical and social. Next please. So why is it required in India? ये क्यों हम अभी ज्यादा इंडिया में चाहिए, ये सो आपको कई लोग बताए होंगे, इसलिए ज्यादा मैं टाइम नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो अधिकतम लोग जो है, अधिकतम नागरिक जो है, शाई अवे फ्रॉम फिजिकलिटी, जो लोग ये समझते हैं, कई लोग अभी भी हैं जो समझते हैं कि दे इंटरप्रेट
सेडेंटरी लाइफस्टाइल टू लग्जरी। अगर आप एसी रूम के अंदर बैठ जाते हैं हर बार और एसी रूम में सो जाते हैं और जो घर से बाहर जाके कार में बैठ के सीधे ऑफिस जाके लिफ्ट में पढ़ के ऑफिस में बैठ जाता है और वापस आ जाते हैं, इसको तो, और शाम को आके जो टीवी देखते हैं और या इस तरफ का जिंदगी निभाते हैं, उसको तो लग्जरी माने जाते हैं कई लोग, लेकिन ये लग्जरी नहीं है, उसको लग्जरी नहीं मानना चाहिए। तो ये एक एक गलत सोच है, ये गलत तरफ का जो ये फैलाया गया है इस तरफ का जानकारी की अगर आप लग्जरी जीना है तो सेडेंटरी जीना चाहिए। लेकिन अभी बदलाव आ रही है, लेकिन बिकॉज दैट इज व्हाई इंडियन शाई अवे फ्रॉम फिजिकल लाइफ, दे एंजॉय अ कार टू कारपेट लाइफस्टाइल, they think that they are luxurious, that if you don't work or if you don't sweat out, no, wrong. So that is why, because of this wrong notion, जैसे आपको पता है हमारे गांव में ये पता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनेंगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनेंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनेंगे नवाब, इस तरफ का जो ये सोच था। लेकिन अभी चेंज हो गया, अब तो ये है कि हमारा ये है कि खेलोगे कूदोगे बनेंगे लाजवाब, ये तो ऐसे बदलाव हो गया। लेकिन इसको सबको बताना जरूरी है, जो ये गलत सोच से क्या हो गया, इंडियन शाई अवे फ्रॉम फिजिकल लाइफ, इंडियन जो है 54% नहीं करते हैं, एंड लेस देन 10% एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, कुछ ना कुछ जो है रिक्रिएशनल, कुछ जो फैमिली के साथ कुछ कम्युनिटी गेम्स इंगेज करना, या कुछ ट्रैकिंग के लिए, कुछ साइट सीइंग के लिए जाना, इस तरफ का आदमी 10% से कम ही लोग जाते हैं। इसलिए जो है क्या हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ गया है, 13.5 करोड़ ओबेस हो गया है, डायबिटिक 7.2 करोड़ हो गया है, थायराइड डिसऑर्डर्स 4.2 करोड़ से, हाइपरटेंशन 8 करोड़ से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 5.5 करोड़। इसलिए इट इज बर्डन हमारा जो है, ये जो ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स इसलिए आ जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं देते हैं, और इसको हमारा जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक जो बोलते हैं और शिक्षा का जो अंतर है उसको पता नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सो सेडेंटरी बिहेवियर एंड फिजिकल एक्टिविटी आर द सेम। अगर आपको एक्टिव रहना है तो कैसे रहना है? अगर आप 5000 से कम स्टेप्स लेते हैं एक दिन, इट इज सेड टू बी डेफिशिएंसी, फिजिकल एक्टिविटी डेफिशिएंसी है। हायर एक्यूमुलेटेड टाइम, इसको अगर आप 5000 से 7000 4,499 स्टेप्स लेते हैं, दिस इज मिनिमम विगरस फिजिकल एक्टिविटी दैट इज रिकमेंडेड। ये भी इतना भी नहीं है, लो एक्टिविटी लाइफस्टाइल है ये। अगर आप 7,500 से कम स्टेप्स लेते हैं, ये लो एक्टिविटी स्टाइल है, और मिनिमम फिटनेस नहीं आते हैं। यू आर नॉट गोइंग इनटू द minimum required physical fitness requirement of a person. And active lifestyle क्या है? 7,500 से above होना चाहिए, then it is said to be active. So physical inactivity is insufficient physical activity, represent lack of attaining the physical. So you should work out at least 150 minutes walk or moderate intensity workout. You must have at least 150 minutes a week or 75 minutes intensity workout. So we have to change from the sedentary lifestyle or low activity, minimum vigorous physical activity. You have to reach to the minimum vigorous physical activity from low activity style. You have to at least reach 7,500 steps a day. आपको अगर एक्टिव लेना है तो आपका जो 7,500 से ज्यादा स्टेप्स लेना चाहिए। आप जानते हैं ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं है। आप अगर देखेगा, ये जो हमारा जो हाउसवाइफ से हमारा जो पुराना जस्ट हमारे ओल्डर जनरेशन में जो अडल्ट थे, जो इवन हमारा माँ बहन जो थे पुराने टाइम में, जो वो अपने घर के अंदर हमेशा आप देखते होंगे कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, या कुछ होमली वर्क करते होंगे, डोमेस्टिक वर्क करते होंगे, किचन में काम करते होंगे, हमेशा मूव करते रहते थे। ये आजकल मैकेनाइजेशन की तरफ से ये सब कम हो गया है, मूवमेंट नहीं होते। और an average during the person has to move at least more than 7,500 steps. Due to mechanized lifestyle and due to mechanization inside the home as well as outside, we are moving into sedentary lifestyle.
For that, it is required that you must ensure that you must move at least more than 7,500 steps every day. हर एक को 7,500 से अधिक कदम लेना बहुत जरूरी है अगर आप एक्टिव रहना है। Next please. अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी होते हो तो उसका क्या परिणाम है, ये इसमें दिखाया जाता है। क्या अगर आप फिजिकली इनएक्टिव है, द फिजिकल इनएक्टिव चिल्ड्रन, उसको तो हायर ओबेसिटी रेट है एंड दे विल मिस मोर क्लास स्कूल डेज। कई टाइम जो है उसका जो क्लास मिस करते हैं क्योंकि वो बीमार पड़ जाते होंगे। एंड जो टेस्ट स्कोर नॉर्मली जो है जब आप स्कूल मिस करते हैं उसका जो कॉग्निटिव स्किल्स है सब कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है, इसलिए लो स्कोर्स आ जाएंगे। एंड यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, यू अर्न लेस मनी, योर कमाई जो है कम हो जाता है। हायर हेल्थ कॉस्ट आपका जो मिल जाता है वो पूरा आप अस्पताल में देना पड़ेगा, जो ज़्यादा बीमारियां आते रहेंगे और मोर सिक डेज, आपका क्वालिटी लाइफ अफेक्ट करेंगे। कई बार जो है अब देख लीजिए आप, पूरा ये टाइम है पैंडेमिक का, इसमें भी आपने देखा होगा जो फिजिकली अच्छा है, जो इसका इम्यूनिटी अच्छा है, इसको इतना ज़्यादा ये असर नहीं पड़ता। असर होता है कई बार जो है एक्सेप्शन से, फिर भी जो जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, जिसका हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसको ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, सिक डेज कम हो जाता है। एंड जो है and more than 6.3 million premature deaths in USA। ये तो USA में है, इंडिया में भी इससे ज़्यादा है प्रीमेच्योर डेथ है। अगर आपका पूरा आपका लाइफ होने से पहले आपका प्रीमेच्योर में आपका देहांत हो जाते हैं, ये भी इनका परिणाम है फिजिकल इनएक्टिविटी। सो इसलिए डेडली साइकिल है। इफ योर किड्स आर इनएक्टिव, अगर आपका बच्चे इनएक्टिव लाइफस्टाइल में जाते हैं, ये जो तो इनका परिणाम जो है बहुत बुरा होंगे। हर चीज में उनका जो हर आपका स्टडीज में, आपका स्कोर में, आपका अर्निंग में, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हर चीज में जो है इसका बाधा पहुंच जाता है, असर पड़ जाता है और आखिर में जो है आपका लाइफ साइकिल में भी इसको असर पड़ते हैं और यू विल लाइव प्रीमेच्योर डेथ। That will be, in case you are living an inactive life. That is established through research and proved through data. Next please. And physical activity and fitness. What is the physical activity? That physical activity, a behavior is bodily movement that increase energy expenditure. Fitness is a physiological trait commonly defined in terms of cardiorespiratory capacity. So once you get into a physically fit lifestyle, फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका बिहेवियर जो है, आपका फिजिकल एक्टिविटी एक बिहेवियरल एस्पेक्ट, आपका एक तरफ का ये आपका बिहेवियर के अंदर आपका आ जाना चाहिए। बॉडीली बिहेवियर है, बॉडीली मूवमेंट है, इसमें से क्या फायदा है? आप मूवमेंट इंक्रीज कर लेते हैं तो एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो जाएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा, आपका ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। You will have more oxygen absorbed in your body. That means you are more robust. Your systems will function more, and all other components of your functions will increase. You will become your internal organs will be very strong and very active. So, iska jo hai, this is the what counts through physical activity. From sleep to sedentary to light intensity to moderate intensity. This is the sequence through which you can make a person who is sleeping, who is sedentary, to light intensity, to moderate intensity, and because these are all the different steps which one should climb and reach to the higher levels, and you can attain better health in your life. Next please. So what are the benefits of fitness? This is something I am just trying to promote us, to market it. ये थोड़ा सा मार्केटिंग करना है। अगर आपको भी इसका तरफ का मार्केटिंग करना है, आप ये मार्केटिंग कर सकते हैं। आजकल तो है ये जो आदमी जो लोग हैं, इसका मेरे से क्या फायदा है? कुछ चीज सब बिकते हैं तो ये ज्यादा बिक जाता है जब उनको पता है इसमें से उनको कुछ ज्यादा फायदा है। जो चीज ज्यादा बिक जाता है जिसका फायदा ज्यादा है। अगर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ फिटनेस फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा जो लोग हैं इसको पता नहीं है, उसको ऊपर आपको असर पड़ना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग का जरूरी है। तो ये जो चीज है जो स्लाइड से मैंने दिखाया है, ये आप मोटिवेट करने के लिए, फिट बॉडी फिट माइंड, आपको तो पता है
में आपको मोटिवेट करने जरूरी नहीं, लेकिन जब आप उसको कुछ क्लास लेते हो, बच्चों को सिखाते हो या माता पिता को, पेरेंट्स को भी सिखाते हो या सोसाइटी में दिखा देते हो, तो ये सारे चीज स्लाइड्स जो है आप उनको दिखा सकता है, जैसे लुक एंड फील बेटर, you have more neurons, your brain gets stimulated. If you are a sports, you want to achieve in sports, you get more medals. You get more medals, you know, you come up in a sports to pinnacle, that means, you know, it's a best profession. You can quote the example of PV Sindhu or Sakshi Malik, how they brought laurels to the country and how they rose themselves in higher up, and they could achieve everything in life in before 25 years of all laurels, Arjuna Award, Khel Ratna, and all cash awards received by all the top functionaries, having, you know, getting more job rewards, more in name and fame in returns. This can also be sports achievement. Is also another part which you can gain through participating, and if you excel in any sport. Strong body, healthy life, fitter resources. You will have, you know, more resources with you. You will have more healthy habits. You will eat good. You will think positively. Your thinking itself will be, you know, changed. You will negative thoughts will go away. You will have faster recovery because you are absorbing more oxygen. You will live longer. You will control your emotions. If a person, you know, playfield is a place where you will learn how to lose. ये खेल जगत ऐसे है जहां आप यू नो जीतना और हारना से सीख जाता है, हारने से सीख जाता है। हारना बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये इमोशन में कंट्रोल हो जाते हैं एक आदमी का, तो इमोशनल कंट्रोल हो जाए। और सोशल बिहेवियर जो है, आप किस तरफ से एक सोसाइटी में बिहेव करना है, आपका एक्सेप्टेबल किस तरफ से, आपका सिटीजनशिप क्वालिटीज किस तरफ से, सोसाइटी क्या आपको, आपसे क्या सोच आपका उससे मांगते हैं, तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इसे सोशल बिहेवियर आप किस तरफ से होना चाहिए, ये सारे चीज सीख जाता है। एंड अवे फ्रॉम डिसीज, कोई you can get rid of many ailments through physical fitness and participating in sports. ये सारे चीज जो है आपको मार्केटिंग के लिए, हर एक को आप सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसका मन को परिवर्तन करने के लिए, उसको पॉजिटिव आपको बदलाव दिलाने के लिए, ये सारे चीज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड एकेडमिक। कई बार जो है हम ये सोचते हैं या लोग सोचते हैं कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, ये गलत है। क्योंकि अगर आप नया जो रिसर्च प्रूव कर लेते हैं कि जो अच्छी तरफ खेलते हैं, जो अच्छी मैदान में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो मेंटल कॉग्निटिव स्किल्स जो है बहुत बेहतरीन हो जाता है, उनका जो मेंटल अलर्टनेस है बिल्कुल बेहतर जाता है। न्यूरॉन्स जो है उसका प्रोडक्शन, नर्व सेल्स जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उनका जो ब्रेन हर एक्टिव, सुपर एक्टिव हो जाता है। इसलिए जो है फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस जो हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है, और हेल्थ से जो अच्छा होने से आपका मेंटल फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो ठीक हो जाते हैं, आपका मेमोरी अच्छा हो जाता है, आपका परसेप्शन अच्छे हो जाता है, आपका इमेजिनेशन अच्छे हो जाते हैं, आपका जो एनालिटिकल स्किल्स जो अच्छा बढ़ जाते हैं। ताकि अंतर क्या परिणाम इसका ये है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी इसमें से जो है काफ़ी आपको मदद मिल जाता है इसमें। So, what is the outcome of a good PE program? अगर आप एक अच्छा सही तरफ का शिक्षक, शारीरिक शिक्षक प्रोग्राम आप करते हैं, अगर आप कर जाएंगे, तो इसमें से जो आउटकम है, आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, आप इनका जो भी मैंने पहले जो स्लाइड्स दिखाया है, जैसे ये भी उनका साथ जोड़ सकता है, encourages physical, ये सारे चीज जो build self confidence, develop cooperation and teamwork, provides an outlet for creative self expression, helps to prevent sickness disease, encourage physical activity, provide social opportunities for personal goal setting, increases personal fitness and motor skills, helps reduce anxiety, strengthens relationship with others. एक हर फिजिकल शारीरिक शिक्षक जो है, इस चीज का जो है आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अदर मोटिवेटर बना सकते हैं। हर शारीरिक शिक्षक को आपको ये चीजों से आप अपने समूह को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, स्कूल को, कम्युनिटी को, आपको जो है उसको बदलाव ला सकता है, आप उनको मोटिवेट कर सकता है, आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप देख लीजिए अभी जो कई तरफ का जो लोग हैं, इससे लाभ उठा देते हैं,
कई तरफ का जो है कई चीज आप देखने होंगे कि मीडिया में कई तरफ का जो ये आया हुआ है लर्निंग यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग पोर्टल्स ऑफ कम, जो कई लर्निंग पोर्टल्स आए हुए हैं और जो गुरु हर गुरु जी भी आए हैं कई जो है, ये जो मार्केट करते हैं ये सारे चीज जो है ये शारीरिक शिक्षा का जो है चीजें हैं, ये चीज हर शारीरिक शिक्षक का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपना नाम कमा सकता है। आप अपने आप एक इंस्टीट्यूशन के तरफ उठ सकता है, आपका नाम और रोशन कर, क्योंकि लोग इसको आप जो बोलेगा अगर सही तरफ से आप बोलेगा आप उसको ऊपर असर आपको उसको कन्विंस कर सकता है तो आपको बिल्कुल उसका एक नाम कमा सकते हैं आप, और आपका जो प्रभाव जो है आपका जो जहां भी आप हो, जितना स्कूल में ही हो या जिस सोसाइटी में आप काम करते हैं, जिस कम्युनिटी में आप काम करते हैं, उधर पूरा आपका असर एक शारीरिक शिक्षा का नाते उसका आपको अच्छा इन्फ्लुएंस वो कम्युनिटी और सोसाइटी में कर सकता है, स्कूल में कर सकता है, बच्चों के ऊपर कर सकता है, क्या पेरेंट्स के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करना चाहिए कि आउटकम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का परिणाम जो है शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा का जो आपका क्लास है उसका परिणाम क्या होता है, आउटकम क्या होता है ना, इसके बारे में आप उसको समझाना, सिखाना, बताना, मोटिवेट कराना, ये बड़ी बात है। ये आप देखे होंगे जो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है या और मार्केटिंग मैनेजर्स है जो अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करते हैं, वो जाके या टीवी में ऐड आते हैं, आप एक बार उसको ऐड देखते हैं उनको सुनते हैं तो एक बार आपको पता ये सोचेगा अगर जितना खराब चीज है भी तब भी आपको सोचे वो ये सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो वैसे ही अच्छा है, ये कोई गलत फहमी आप नहीं सिखाता, आपका प्रोडक्ट जो है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का आउटकम जो है बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, आपको ये तो सच्चाई है। आप अगर एक बार उसको मार्केटिंग कर लेते हैं ठीक तरफ से, आप अभी जो वातावरण है अभी का जो करंट ट्रेंड जो है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, रिसेप्टिव है, अगर आप इसको थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हो तो अच्छा बिक जाएंगे, सारे चीज आपका पास आ जाएंगे, आपका खुद आपका भी और अपने सोसाइटी का भी इसका लाभ होगा। एंड हाउ डू द स्कूल फॉर्म, अब आप जानते होंगे कि हमारा ऊपर इंडिया में 300 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, आप देख लीजिए 300 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड 80 मिलियन आउट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बिटवीन द एज 5 to 19। यस, जितना ज्यादा ये पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ जो है हमारा भारतवर्ष में है। आप देख लीजिए उसको कौन हैबिट, उनका जो सही तरफ का कैरेक्टर कौन बिल्ड करेगा, उसका हैबिट कौन ट्रांसफॉर्म करेगा। इंडिया अगर ऊपर और भारत और हम जो सोचते हैं कि पूरा दुनिया का सबसे ऊपर आना है, टॉप नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में आना है, फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, from from irrespective of any field, if you want to reach the top of that we are expecting that we will reach the top of the world maybe in less than a decade. हम already हम economically fifth nation we have become, and world looks at envy. Why? World looks at us with envy because we are the largest youth population. When the rest of the world is becoming old, we are becoming more young. And that is why it is said that and our minds are the most bright mind and bright body. हमारा जो बच्चा है, हमारा जो यूथ है, उसका सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आजकल पूरा ज्यादा में पॉपुलेशन है। अगर आप दुनिया को आगे बढ़ाना है और इंडिया का यूथ से होगा, अगर आप उसका सही हैबिट, ठीक कैरेक्टर बिल्ड करते हो, ठीक हैबिट बना देते हो, तो ये इंडिया का पूरा भारत का गतिविधि परिणाम कर लेंगे, ये हम पूरा दुनिया का ऊपर पहुंचा है। तो वो कौन करना चाहिए दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी किसका है, ये जिम्मेदारी और भूमिका तो शारीरिक शिक्षकों का, और ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आपके लिए। तो हमारा भारतवर्ष को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, कैसे बदलाव लाएंगे, हर चीज में जो है हमारा जो बच्चे हैं, हमारा यूथ है, उसको आप प्रज्वलित करेंगे, उसको जो हैबिट ठीक करेंगे, उसका जो कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, उसको सही तरफ से मोल्ड करके अगर आप आगे बढ़ा देगा तो ये बिल्कुल देश का ही परिणाम बहुत ही बेहतरीन होगा। सबसे हम पूरा दुनिया की मशहूर एक ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल कुछ ही समय में। हम ऑलरेडी हम ऊपर जाते रहते हैं, टॉप पहुंच गया है, चौथा या पांचवा हो गया है हम, और 2-3 कदम और उगे आकर बढ़ना है, और हमारे पास पूरा उनका बचे है, यूथ है हमारे पास। लेकिन कौन करेगा ये शिक्षक करेगा। शिक्षक में खास करके शारीरिक शिक्षक का भूमिका इसमें ज्यादा है, खेल जगत में उनको लाना है।
उनको सिखाना है, उनका हैबिट बिल्ड करना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है। ये ज्यादा सबसे ज्यादा जो जेने का आपका ऊपर जिम्मेदारी है भूमिका। सो अगर आप एक पिरामिड देखेंगे, आप देख लीजिए आपका पास 1.5 मिलियन स्कूल्स है और 33 करोड़ चिल्ड्रन है। सबसे ब्रॉड बेसिंग जो ग्रास रूट डेवलपमेंट का रोल है वो पीई फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का है। और जो है इन अगर आप खेल में ऊपर लाना है, या अगर आप ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन सबसे टॉप लाना है, तो अगर आपका ये 1.5 मिलियन स्कूल्स में 33 करोड़ चिल्ड्रन को अगर आप शारीरिक शिक्षा बता सकता है, आप उसको खेल जगत में ला सकता है, तो जरूर आपका जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में आपको बिल्कुल बेहतरीन बच्चे आ जाएंगे हर खेल में। मे बी एथलेटिक्स, कई जगह में एथलेटिक्स होगा, वॉलीबॉल होगा, फुटबॉल होगा, बास्केटबॉल होगा। जिस तरफ का जो शारीरिक गतिविधि है, उनका शारीरिक क्वालिटीज है, वो हर जिस स्पोर्ट्स को सूट करने हैं, ऐसे बच्चों को हम डेवलपमेंट स्टेज में ला सकता है। वी कैन मेक can develop, then from there we can make them elevated to the state centers, excellence में ला सकता है। स्टेट सेंटर, अगर आप एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टेट सेंटर में अगर आप और बेहतरीन करते हैं तो और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ले आ सकता है, और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आ गया तो वो जो है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो गया, और जो है वो जो इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। दे कैन विन मेडल्स एट द इंटरनेशनल लेवल, कॉन्टिनेंटल लेवल, एट द वर्ल्ड लेवल। लेकिन what is basically required to expand the base? You want to, and who will do it? This can only be done by the physical education teachers and community coaches. And if you don't do the broad basing, अगर आप नहीं करते हैं तो खेल जगत में एक ज्यादा इम्प्रूवमेंट या बदलाव लाना बिल्कुल मुश्किल है। जब आप अपने पूरे बच्चों को खेल जगत में ला सकता है, उसको शारीरिक शिक्षा के बारे में बता जाता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, आप उनको पता चल जाएंगे कि इसमें से कौन किस गेम के लिए काबिल है, उसका ऊपर किसका ऊपर इनका स्किल्स है, टैलेंट्स है, वो पता चल के हर आप अगर आप उनको अपनी अपनी स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको ला सकता है, अपनी अपनी खेल को उसको बता सकता है, और डेवलपमेंट एक्सेलेंस और एलीट स्टेज तक उसको ऊपर जैसे आप फर्स्ट चांस से लेके पीजी तक और पीएचडी तक पहुंचते हैं, इसी तरफ जो है आप उनका खेल में भी जो ब्रॉड बेसिंग से लेके ओलंपिक लेवल तक, वर्ल्ड लेवल तक आप उनका रास्ता दिखा सकता है। लेकिन आपका सिर्फ जिम्मेदारी जो भूमिका जो है सिर्फ ब्रॉड बेसिंग सब सीमित है, वो ही काफी है। अगर आप उसमें कामयाब हो जाएंगे तो एक्सेलेंस में लाना और ऊपर बताना और ऊपर ले आने के लिए बिल्कुल आसान रहेगा, और उसको जो है हम बिल्कुल एक बदलाव जो खेल जगत में हम ला सकते हैं। इसका जो भूमिका और जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा खेल शारीरिक शिक्षकों का ऊपर है और कम्युनिटी कोचेस का ऊपर है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज द चार्ट, रोड मैप, एथलीट रोड मैप। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आप ऊपर ले आना चाहते हैं, जो मैंने स्लाइड दिया है पहले, उसका सक्सीडिंग है, ये ग्रास रूट है सबसे ज्यादा, गेट मूविंग, मूवमेंट एजुकेशन, और रिफाइनमेंटिंग ऑफ मूवमेंट, जो मूविंग कराना है, चलाना सिखाना है, तो चलाने में जो भी उनका दोष है, जो उनका है, उसको क्लियर करना, उसको रिफाइन करना, और लर्निंग, ठीक स्किल्स का लर्निंग कराना, ये सारे चीज ग्रास रूट में और ग्रास रूट 1 और 2 में कराना, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 में कराना का काम जो है पीई टीचर्स का है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का है। और जो है ग्रास रूट्स से ऊपर आ जाता है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आ जाता है, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आता है, स्पेसिफिक प्लेइंग एंड कंपटीशन में आ जाता है, तो फिर उसका वो है कोचेस के ऊपर, हर एक का कोचेस जो है उसी के ऊपर छोड़ना है। फिर जो डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है, डेवलपमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल होगा, स्किल डिटर्मिनेशन होगा, स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस होगा, और टैलेंट डेवलपमेंट कोचेस है उसका ऊपर है। और जो है एक्सेलेंस में आ जाता है, वो तो रिप्रेजेंटेशन एट नेशनल लेवल है, सक्सेस पीरियड, ये तो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कोचेस है, और उसमें भी ऊपर आ गया, एलीट लेवल पे आ गया, इंटरनेशनल लेवल पे आ गया, तो फिर हाई परफॉर्मेंस का ऊपर है, सस्टेन सक्सेस एट इंटरनेशनल लेवल। सो दिस इज द टाइम, एंड फ्रॉम इफ इट इज फॉर, अगर ये तो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए पाथवे है, और स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के लिए है। अगर आप लाइफ स्पोर्ट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में नहीं आता है, सिर्फ लाइफ का एक
नागरिक जैसे एक अलग फील्ड में है, तो कैजुअल स्पोर्ट्स you have to, you can start with some getting yourself involved in some sports, some sort of competition. You can get modified into sports, थोड़ा refined games, तो माइनर गेम्स है, मेजर गेम्स है, इस तरफ का गेम में ट्रेडिशनल गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इसके अंदर जोड़ के आप अपने स्पोर्ट्स फॉर लाइफ में जा सकते हैं। और एक्टिव लाइफस्टाइल में भी इसी तरफ का आपका लैडर है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, स्किल्स, मूवमेंट स्किल्स है, इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट स्पोर्ट्स है, मल्टी स्पोर्ट्स एंगेजमेंट है, रिक्रिएशनल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है। इस तरफ से जो है हर, अगर आप किसका आपका सोच किस में है, फिटनेस एक्टिव स्टाइल है, आप अपने एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाइए। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करना है तो उसका ये तरीका है, ये जो उनका लैडर है। तो जिस तरफ से आपको रोड मैप आप करना चाहते हो पार्टिसिपेट उसी तरफ, लेकिन हर एक के लिए ग्रास रूट डेवलपमेंट, ग्रास रूट लेवल में जो डेवलपमेंट है वो करना जरूरी है। डेवलपमेंट स्टेज में आप किसी में भी ऑप्ट कर सकता है, कैजुअल स्पोर्ट्स हो जा सकता है और रिक्रिएशनल गेम्स हो सकता है, फिटनेस एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन जो है करना जरूरी है। ये फाउंडेशन करने का जिम्मेदारी जो है और रिफाइनमेंट ऑफ स्किल्स करने का, लर्निंग सिखाने का जिम्मेदारी हो, ये शारीरिक शिक्षक का जिम्मेदारी और भूमिका। नेक्स्ट प्लीज। एंड हु इज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर? A physical education teacher's role is the one education through physical activity. You have to teach them physical activity. Yes, हमने बताया physical education teacher are the one who teach physical activities to the school students. Education teachers are the commonly referred as PE teachers and sports teachers. And in physical education, the skill PE teachers are the skill to educate physical education in one or two sports. So ये सब जिम्मेदारी आपका ऊपर है। नेक्स्ट प्लीज। ये पुराना ये कहानी जो मैंने बताया कि अभी खत्म हो, ये जो पुराना ये एक सोच था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये तो आप आज की दुनिया में खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब हट गया है। जहां खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, ये आ गया। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा बिल्कुल, अगर आप खेलोगे कूदोगे बिल्कुल आप लाजवाब, नहीं है तो आपका ये एक्सेल होना और आप क्वालिटी लाइफ जीना मुश्किल है। नेक्स्ट प्लीज। सो यू हैव टू, ये खेल शिक्षक को कई जिम्मेदारी लेना है, कई तरफ का भूमिका निभाना है, एडमिनिस्ट्रेटर होना है, कई बार प्लानिंग करना है, आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करना है, टीचिंग करना है, एकेडमिशियन होना है, हेल्थ एजुकेटर होना है, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, एंड आखिर में इवैल्यूएटर भी होना है। इस तरफ का हर रोल जो है, भूमिका जो है आपको बनाना है। कई बार एडमिनिस्ट्रेटर होना है, मैनेजर होना है, प्लानिंग करना है, टीचिंग करना है, कोचिंग करना है, एकेडमिक करना है, हेल्थ एजुकेशन करना है, कम्युनिटी सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस भी कराना है। इस तरह का जो हर चीज जो है आपको करना और सिखाना और बताना, रोल भूमिका निभाना आपके लिए शारीरिक शिक्षकों के लिए मौके के अनुसार हाँ आपको करना जरूरी है। उस तरफ का भूमिका भी आपके ऊपर सौंपा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते आपको करना, कई बार जो है आपको टीम्स का प्रिपेयर करना है, टूर्नामेंट को सेलेक्ट करना है, जो स्किल वाला आउटसाइड स्कूल के लिए जाने के लिए जो परमिशन लेना, एंट्री फॉर्म्स भेजना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना, टीम्स का टूर्नामेंट ले जाना, इस तरह का कई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का लिखा पढ़ी जो है आपको करना है, ऑफिशियल वर्क कराना है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर का और मैनेजर का काम है, लेकिन आपको इसमें भी आपको जानकारी होना और पता होना, लिखा पढ़ी करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर के काम है। ये आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है टीचर के साथ साथ। ये एक स्ट्रेंज मिक्स है, एकेडमिशियन कम एडमिनिस्ट्रेटर इज अ स्ट्रेंज इंटरमिक्स। A good administrator may not be always a good manager or a good academician, but a physical education teacher should have administrative and managerial qualities along with the qualities of a good teacher. And you must know how to conduct fitness tests, knowledgeable tests and prescribed in respective boards for carrying accordingly. ये सारे चीज टेस्ट कई बार जो है स्पोर्ट्स मीट करवाना है, टेस्टिंग करवाना है। नेक्स्ट, इस तरफ का जो है कई जिम्मेदारी और भूमिका आपको निभाना पड़ेगा। सो ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे चीज आपको कई बार जो है करना है। नेक्स्ट प्लीज।
providing inputs regarding school sports policy. एंड अगर आपका स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, उनको पता, मैनेजमेंट को इसका इतना बड़ा जानकारी नहीं है, तो स्कूल में एक अच्छा पॉलिसी अपने स्कूल के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कराना भी आपका जिम्मेदारी। उसको मैनेजमेंट को सिखाना, बताना, उसको कन्विंस करना। उसका अगर आपका पॉलिसी ठीक नहीं है स्कूल का, वो खेल के लिए ज्यादा प्रभाव नहीं देते, तो उसको बदलाव करना, उसको जो माइंडसेट बदलाव लेना, उसको बताना, समझाना, ये सारे चीज आपको एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की भूमिका के साथ साथ आपको निभाना है। ऐसे ग्रेस मार्क स्टूडेंट के लिए सिक्योर करना, टूर्नामेंट के लिए भाग लेने के लिए मैनेजमेंट को परस्यू करना, रिकमेंडेशन फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स और रिवार्ड्स देने के लिए, स्टूडेंट काउंसिल पोजीशंस के लिए उसको रिकमेंड करना, ये सारे चीज जो है खेल शिक्षक के नाते आपको करना जरूरी है, भूमिका निभानी। नेक्स्ट प्लीज। प्लानिंग भी, तो इंटर हाउस इंट्रामुरल स्कूल टूर्नामेंट, a person, there is a proverb, a person who fails to plan is planning to fail। और अगर जो भी है फील्ड में है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आप प्लानिंग करने में फेल है और यू फेल्स टू प्लान, you are planning to fail. So you should do have planning for your own department, your own institution. So maybe inter-house competition, intramural होगा, inter-school होगा, और क्या एक साल के अंदर या 4 साल के अंदर 2 साल, आप जानते होंगे कि एक नेशन के लिए आपका नीति आयोग है जो नेशन का जो आगे का डेवलपमेंट पूरा देखते हैं, और स्टेट है तो प्लानिंग कमीशन से। इस तरफ से जो है अपने इंस्टीट्यूशन खेल के लिए आप एक प्लानर बनना जरूरी है, और प्लानिंग से जो है आपका जो भी एक कैलेंडर ईयर के अंदर जो भी चीज आपको करना है, उसका पूरा आपको ठीक तरफ से आपका प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। एंड थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना, किस तरफ से आपने कब स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कराएगा, कौन कौन किस गेम में करेगा, फंड रेसिंग, बजट आपका पास है क्या, नहीं है तो किस तरफ से आप बजटिंग लेंगे, इस सेफ एनवायरनमेंट कैसे, कहाँ खेल दिखेंगे, आपका पास स्कूल में खेल का जगह है कि नहीं, अगर नहीं है तो कहीं आसपास में है जहाँ उनको ला सकता है। इस तरफ का सबका प्लानिंग करना, कुछ वर्कशॉप और क्लिनिक। आजकल तो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल साइंटिफिक हो गया है, हर स्पोर्ट्स का हर स्पोर्ट्स साइंस आया हुआ है हर सब्जेक्ट के साथ साथ। मे बी फिजिक्स में बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है, हर चीज में है। तो कुछ ना कुछ वर्कशॉप और क्लिनिक्स अपने अपने इंस्टीट्यूशन में प्लान कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि और डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा कि इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइंटिफिक एडवांसमेंट में स्पोर्ट्स में काफी कुछ आ गया है। कंसर्न विद मेथड्स और रूल्स एंड क्या जो भी बदलाव रूल्स में आया है उसका, डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कहीं कभी कभी उसका पूरा स्कूल को कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ दौड़ में या स्पोर्ट्स इवेंट या कुछ ना कुछ नई तरफ का प्लानिंग करके आप उसको खेल जगत में लाने का कोशिश करना, ऑर्गेनाइज करना। So as a teacher what you have to do, you have to be a role model for fitness। अगर आप दूसरे को कुछ करवाना है तो पहले अगर आप किसी को उंगली उठाते हैं तो आपको देखना चाहिए 3 उंगली आपका ऊपर। तो जब आप किसी को सिखाना है, फिजिकली फिट बनाना है, तो अपने आप पे भी एक बार देख लीजिए हाउ फिट यू आर। अगर आप खुद फिट हो या नहीं है तो आप थोड़ा बहुत अपने आप को भी देख लीजिए किस तरफ का आपको भी फिजिकली फिट मेंटेन होना है। टू इंस्पायर, एनालाइज the entire physical education activities along with the students, you have to be a role model and enhance the physical। आप उसको बताना चाहिए कि हर बच्चे तुम्हारे ऊपर एक कमी है, आप उनको पता चल जाएंगे ये ओबेस है, या इनका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कम है, या इनका और कुछ कमी है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, टाइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, या इनका कुछ और कमी है, एनीमिक है। तो जो भी उनको है फिटनेस लेवल है उसको बताना और उसको सुधारना, उसको चेंज कर, ये भी उसके लिए आप मास ड्रिल है, कैलिस्थेनिक है, रिदमिक एक्टिविटीज है, उसका मोटर स्किल एनहांस करने के लिए कई और तरह का नई तरफ का आया, ज़ुम्बा डांस आया हुआ है, रिदमिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइजेस है, कई तरफ का नया जो ई लर्निंग में आपको आखिर में एक दिखा देंगे जो पैंडेमिक में एक सबसे मशहूर टीचर है जो यूके में, उसने किस तरह से आपने ये किया है। नेक्स्ट प्लीज।
So you have to teach the rules, make the children enthusiastic. They have to correct them. These are all normal. Next, please. So you have to, as an academician also, आपको एक academician, क्योंकि there are a lot of teaching included. एक सिर्फ आप खेल मैदान में नहीं है, एक academician की तरह से curriculum आपका थोड़ा बहुत classroom teaching भी आप कर लीजिए, वो तो अच्छा रहेगा. Health education के बारे में and written test, कुछ test ले लीजिए, grade mark sheet में थोड़ा उनको दे दीजिए कि health education में कितना mark है, या general sports medicine या general awareness about sports and games. So you should take it as an academic pursuit. एक academic subject के नाते आप physical education को जो दें, उसमें जो भी scientific aspects है उसको थोड़ा आपको classroom में बता दीजिए. Research और development क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बता दीजिए, और उसको थोड़ा सा एग्जाम वगैरह थोड़ा क्यूज वगैरह लेके उसको उसका हौसला बढ़ा के आप उनको ज़्यादा उसमें एकेडमिक्स में भी, उसका थियरी पार्ट में भी, उसका साइंटिफिक पार्ट में भी आप ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा रहेगा. नेक्स्ट प्लीज. हेल्थ एजुकेटर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है. कैसे स्टूडेंट न्यूट्रिशन को, कई जगह जो है गलत न्यूट्रिशन, उनको जो मन मर्जी से खा जाता है. इंडिया के कई जगह में जो अपने अपनी डाइटरी हैबिट्स, जैसे केरला में ज़्यादा लोग राइस खाते हैं और अगर वेजिटेबल्स कम खाते हैं, जो नॉर्थ में जो है घी ज़्यादा खा जाते हैं. इस तरफ का जो हर जगह में गलत न्यूट्रिशनल हैबिट्स है उसको सुधारना है. तो उसको बताना चाहिए बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या असर कैसे होते हैं, मैल न्यूट्रिशन से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, और हेल्थी हैबिट्स लाइफस्टाइल कैसे करना है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैसे आ जाता है, ड्रग यूज से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, फर्स्ट एड कैसे करना है, इंजरी प्रिवेंशन करना है, इंजरी आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे उनको रेक्टिफाई करना है, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है. ये सारे चीज हेल्थ एजुकेटर को आपको बताना है. कम्युनिटी सर्विस, यू हैव टू कंडक्ट वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. अगर आपका स्कूल के आसपास में जो जगह है उसका कुछ ना कुछ वीक आ गया है, जैसे वेरियस, देयर आर वेरियस डेज, मैराथन्स, मे बी फिटनेस डे, योगा डे, and various other occasions, Independence Day, Republic Day, on various occasions of national interest, you can coordinate, you can make a community service provider. You can increase, you can organize various recreational events. You can take initiative in organizing sports events. जो community के लिए उसको दौड़ में पसंद है तो दौड़ में ले जाइए, या फुटबॉल में है तो फुटबॉल कर लीजिए थोड़ा मॉडिफाइड करके, मैराथन है तो मैराथन करवा दीजिए, या फिटनेस के करना है, जुम्बा डांस और रिथमिक्स और एरोबिक्स कराना है तो वो करवा दीजिए. तो कम से कम कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर की, ताकि अपने जो कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरफ का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फैला दीजिए, जिसमें जो कम्युनिटी और सोसाइटी में भी इनका जो असर पड़ जाएगा, वो लोग भी आ जाएगा खेल जगत के अंदर, वो भी इसका मालूम पड़ जाएंगे इससे क्या फर्क है, इससे क्या फायदा है. नेक्स्ट प्लीज. अदर डिसिप्लिन्स के अंदर, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के अंदर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिन लागू करना, उसका पता करना है कि इससे क्या है, डिसिप्लिन आप ही करा सकता है. लीडरशिप, और स्पोर्ट्स में खेल में आने से लीडरशिप स्किल बढ़ जाता है, उसको एक अच्छा लीडर बना सकते हैं आप. तो ये लीडरशिप स्किल्स में बारे में बता, इंटरपर्सनल स्किल्स, जो किस तरफ से सोशलाइज करना है, किस तरफ से उसको मिलना है, जुलना है. आप जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स विलेज, ओलंपिक्स जो है सिर्फ खेलने के लिए जगह नहीं है. ओलंपिक्स में ओलंपिक विलेज है. ओलंपिक विलेज क्या है? ओलंपिक विलेज को यह है कि हमारा भारत इसका काम करता है कि वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम मीन्स ग्लोब एज ए विलेज. ओलंपिक विलेज इज ए ग्लोब एज ए विलेज. तो इन स्पोर्ट्स का सबसे अंदर जो है जो स्किल, उसको बताते हैं स्पोर्ट्समैनशिप. स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? उसके अंदर एक ग्लोबल सिटीजन पैदा हो जाए, उसका जो भी उनका व्हाटएवर उनका ऊपर जो भी गलत तरीके का सोच है वो सब मिट जाता है, उसका अच्छा मॉरल वैल्यूज आ जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप आ जाता है, एक लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द सोसाइटी, लव फॉर द पेरेंट्स, लव फॉर ईच अदर. इंटरपर्सनल स्किल ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट आ जाता है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना, स्कूल टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना, ये सारे चीज को खेल जगत में सीख जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप बन जाता है. तो इसका अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये स्टूडेंट बिहेवियर आपसे जैसे कोई और बेहतरीन उसको देख नहीं पाता. एक बच्चे का स्कूल का, अगर आप अच्छा स्कूल फिजिकल एजुकेशन टीचर है
आपका स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं हर एक के बारे में आपको पता होगा, किसका क्या कमी है, किसका क्या क्वालिटीज है। अगर उस तरफ का आप उनको इंडिविजुअली आप उनको थोड़ा सा बता देते, तो किस तरफ से उनको मॉरल वैल्यू, स्पोर्ट्समैनशिप, पर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ये सारे चीज आप थोड़ा ध्यान रख के उसको बता देंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल वो जो है पूरा जिंदगी पर आपका आवर रहेगा। आप बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन दे विल रियलाइज, दे विल रेस्पेक्ट यू थ्रू आउट। आप पता चल हर हर वक्त बोलेगा मेरे ये साहब थे जो खेल शारीरिक शिक्षक थे, मेरे को ये कराया, मेरे को इसलिए मेरा पूरा जिंदगी बदल गया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये बिल्कुल ये पूरा स्कूल के ऊपर आप असर पड़ा सकता है, आप बदलाव ला सकते हैं। तो ये सारे चीज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर और जिम्मेदारी के ऊपर आपको करना जरूरी है। ये करने से काफी जो मदद जो है पूरा स्कूल पूरा बच्चों के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और इवेल्युएट, एक बार आपने ये सारे चीज कर दिया तो हर चीज को जो है लास्ट में इवेल्युएट करना, सेल्फ इवेल्युएट करना चाहिए। आपने जो भी एक साल में जो किया है, जो आज एक बार आप एकेडमिक ईयर खत्म होने के बावजूद आप रिव्यू कर लीजिए, आपका डिलीवरी सही हुआ है कि नहीं, आप सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, आप कामयाब हो गया है कि नहीं, कितने तक आप पहुंच पाया, कितने बच्चों का कौन कौन बच्चे थे, किस तरफ से आपने किया है, और आपने कुछ खास करके उनको सिखाया है, उसको बेहतरीन तरीका सिखाया है, कुछ इम्प्रूवमेंट उसके ऊपर आया है। तो ये सारे आपने क्या क्या किया है बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो उसका बदला क्या किया, एक बार आप मुड़ के देखना, हर साल, हर बार, हर क्वार्टर में, ये आपके लिए इवैल्यूएटर के नाते आपको काफी अच्छा रहेगा। So these are all age appropriate physical activities we have already learned. I don't want to that you have to, all the children should be engaged. You should have time allotted for all the children. You should have adequate equipment for doing various class activities, and it should be a structured physical fitness, physical activities. You should keep it in an order. It should be age appropriate, progressive, and educational process where you should mean to help people to acquire skill, fitness, knowledge, attitudes, and contribute for optimal well-being. ये हर एक का होना चाहिए। Next please. So this is about how a physical education teacher could recognize, Alan Watson, who was who has made an impact in MOFRO. The MOFRO is one of the two gold medals he has got in Olympics. ये जो आपने देख रहे हैं, ये एक शारीरिक शिक्षक है, उसका नाम है आलन। उन्होंने जो ये मो फरो को पहले देखा, वो जो फुटबॉल खेलते थे, जब उनको पता चला ये जो फुटबॉल से उनको क्या कोई ज्यादा ये नहीं है, फुटबॉल उनके लिए सूटेबल नहीं, उनको बताया बच्चे जो है तुमको फुटबॉल से ज्यादा तुमको आगे नहीं बढ़ सकता, आप दौड़ सीख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं। और उसका मान लिया और दौड़ में फोकस कर दिया, और उसने 2 ओलंपिक मेडल ला पाया। सो ये जो तो ये अलन ने किया है। तो ये इसके लिए जो है कि ये हर एक खेल शारीरिक शिक्षक बता सकते हैं बच्चों को कि किस खेल जगत के अंदर उनको ज्यादा ऊपर आने का ज्यादा उनका संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। ये केरल में थे, एक टीचर थे, एक मामूली विजयी, केपी विजयी करके, और उनका बच्चा था ये जो तोनेकल, जो अभी ओलंपिक्स भाग लिए हैं। तो वो कुछ नहीं थे, एक सिर्फ बच्चा थे, उनके ऊपर स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने बताया बच्चे तुम्हारा ये दौड़ में अच्छा है, तुम मिडिल डिस्टेंस में फोकस करो। तो मान लिया और उसको मिडिल डिस्टेंस में उसको ओलंपिक तक जा पाए, एशियन मेडलिस्ट भी है। तो ये सब है ना गोल फॉर फिजिकल एजुकेटर्स है, टू एक्सेस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, हर एक के लिए स्पोर्ट्स फॉर ऑल प्रिंसिपल। ये स्पोर्ट्स जो है सिर्फ एक जेंडर एज बेसिस नहीं है, ये हर एक के लिए है, अच्छा है। ये इसमें से जो है डिसीज प्रिवेंट हो जाता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट का वेल बीइंग के लिए काफी जो मदद करता है। नेक्स्ट प्लीज। सो यू आर अ लीडर, आप एक लीडर है, आप एक मोटिवेटर है। आप जो है फिजिकल एक्टिविटी अच्छा तरह प्लान करेगा, आप पूरा अपने कम्युनिटी स्कूल के अंदर एक लीडर के नाते लीडर की रोल ले सकते हैं, मोटिवेटर की रोल लेके आपका जो व्यक्तित्व जो है अगले टीचर स्कूल में एक अन्य तरीके का रोल आप निभा सकते हैं, एक भूमिका आप निभा सकते हैं। वो कई लोग आपसे ऐसे करते होंगे, लेकिन ये जो है ये आपका जो भूमिका से आपका स्कूल का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन जाता है। आपसे बिना स्कूल को आगे बढ़ना, इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को आगे बढ़ना
मुश्किल पड़ेगा। इस तरफ का जो है भूमिका और जिम्मेदारी आपका ऊपर है, ये आप ठीक तरह से निभाने से एक रोल मॉडल बन पाएंगे और ऊपर अपने लेवल पे आप ऊपर आ सकते हैं। So I will just show you to end with a video of Joe Wicks, who became the world's most popular physical education teacher. ये Joe Wicks जो है यूके का एक फीस टीचर है जिन्होंने कोविड पैंडेमिक टाइम में बच्चों के लिए एक यूट्यूब में एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें से ये पूरा दुनिया के अंदर मशहूर शारीरिक शिक्षक बन गया। यह कोई खास करके कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली तरीका। आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के ऊपर आपका स्ट्रैटेजी भी चेंज करना चाहिए और मोटिवेट करना है बच्चों को, जो है उसके अंदर हौसला बढ़ाना, उसको इंटरेस्ट बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना, उसको बहुत ही जरूरी है। ये देख लीजिए जो विक्स किस तरफ से अपने बच्चों को मोटिवेट करके सबसे मशहूर, दुनिया का अंदर सबसे मशहूर शारीरिक शिक्षक कैसे बन गया अभी ये कोविड टाइम के अंदर। Across Britain will close by the end of the week until further notice. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. The country had just been put on lockdown, and I messaged my brother Nick with an idea. PE with Joe, a live workout every day, Monday to Friday at 9 AM. Good morning, everybody, and welcome to day number 1 of my PE with Joe. On that very first day of PE with Joe, over 900,000 families took part from around the world. And on the second day, 955,000 families took part, and we broke the world record for the largest streamed workout ever on YouTube. Since then, we've done more than 70 workouts together, every single Monday to Friday since the lockdown began. We didn't stop for a half term or even a single bank holiday. We kept turning up. Joe Wicks, the body coach, now PE teacher to the world. Joe, it's so good to see you this morning. Good morning, world! We've had people take part all over the world. While we were having burpees for breakfast here in the UK, there were people in Australia and New Zealand doing Spider-Man lunges before bed. Every morning at 9, I do Joe Wicks. We've bunny hopped together, Pikachu'd, burpeed and been silly billies. We've dressed up as superheroes and panda bears, and George Ezra has kept us dancing. We've had gate crashers and substitute teachers, and we kept turning up. We haven't quite done the Joe Wicks workout that everyone else seems to be doing, but we're not far off that probably. That might happen at some point. We've laughed together, we struggled together, we even got stronger together. We high-fived our brothers and sisters, our mums and dads, and we told them to keep going. When I started my career as a personal trainer, my goal was to take people on a fitness journey, to teach people that exercise can transform us, not just the way we look, but how we feel. Sometimes only one person would turn up to my boot camp. Sometimes nobody would come. If I could impact just one person that turned up, I would be there, and I kept turning up. In the last 13 weeks, we have had more than 70 million views on PE with Joe. And between us, we've raised over £500,000 for the NHS. We kept turning up, and we did something amazing together as a community. If I've managed to impact just one of you, and you go on to live a healthier, happier life, or if I've changed the way you think about exercise and fitness, then I've achieved my goal. So thank you so much for being with me on this PE with Joe journey. And remember, keep turning up. So Joe Wicks. Are you somebody who's always desired to become a speaker trainer coach? Are you someone who knows that you have this skill set and yet are struggling with how to establish yourself as a speaker trainer coach? I was someone who pretty much had So this is about Joe Wicks, which is the most popular physical education teacher during the pandemic. So I think this is something innovative which he has designed. I told that you have to plan according to the time, plan according to the situation, according to the environment. आपको अपने खुद निजी प्लानिंग करना चाहिए. जो आपका प्लानिंग है, जो आपका जो वातावरण है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसका साथ साथ होना चाहिए, उसका टाइमिंग के साथ जुड़ना चाहिए, उसका जो डिमांड्स के साथ जुड़ना चाहिए, अवेलेबिलिटी के साथ जुड़ना चाहिए और इंटरेस्टिंग बनाना है. और उनका जो आपका पार्टिसिपेंट्स है उसका ऊपर इनोवेटिवली आप उसको मोटिवेट करने के लिए अलग अलग नई नई चीजें जोड़ना चाहिए. तो जो विक्स इसलिए किया, इसलिए वो पूरा दुनिया के सबसे मशहूर शारीरिक शिक्षक बन गया. इस तरफ का आप भी हर एक ये कर सकता है, अपने आप का प्लानिंग कर सकते हैं, इनोवेशन करके नया नया टीचिंग मॉडल्स, लर्निंग मॉडल्स आप ला सकते हैं. अगर आप इस तरफ से करेगा तो बिल्कुल आपका ऊपर
आपका जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल कामयाब रहे। To conclude with, I will conclude with our Honorable Minister Shri Kiran Rijiju ji, Youth Affairs and Sports Minister. He has said he is the one why when we launched this program of community coaching and PE program, he mentioned that community coaches and physical education teachers have a big role to play in reaching every child in every corner of India and motivating them to take up sports and fitness as a part of their daily life. In the culture of sports can be developed and champions will automatically emerge. So, this is what our minister has said. I have said initially with the Honorable Prime Minister's words and the Honorable Sports Minister what they have said. This shows that the present times you have got a lot of dearth of good work to be done. अभी जो टाइम है जो है बिल्कुल शारीरिक शिक्षा और के लिए बिल्कुल बहुत ही अनोखा अवसर है। आपको इस अवसर पे अगर आप सही तरफ से अपने रोल भूमिका और जिम्मेदारी निभा लेते हैं तो बिल्कुल ये प्रोफेशन के लिए और इस जो शारीरिक शिक्षक प्रोफेशन के जो बिल्कुल आप काफ़ी कुछ योगदान कर सकते हैं, इसका बदलाव ला सकते हैं और जो प्रोफेशन को एक नया मोड देके नया एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बताया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन will become a part of curriculum and it will become at par with the other academic subjects. So you will get the status of a professional subject, like in the case of other professional subjects, which are like maybe medical or engineering or law. Our subject, our field, physical education and sports science will emerge as a professional study or professional subject in the time to come and it will become a part of. ये जो है पूरा शिक्षा का साथ जुड़ जाएगा, जैसे लीगल स्टडीज से, मेडिकल स्टडीज से, इंजीनियरिंग स्टडीज से, ऐसे एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट बन जाने का पूरा संभावना है नया एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार और इनका एकदम जो बदलाव आ सकता है और जो है ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मेन स्ट्रीम शिक्षा के अंदर आने का इस संभावना है। तो सबसे ज्यादा योगदान आपको है जो शारीरिक शिक्षक अभी जो है आपका ऊपर है, लेकिन आपका थोड़ा सा भी एक बार एक्टिव होना, एक बार और ज्यादा आपकी अपने पर्सनल बेस्ट देना अगर आप करेगा बिल्कुल आपको इसमें एक सी चेंज, एक वास्ट चेंज आपका फील्ड के ऊपर आने का संभावना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and you have a multifaceted role and you have got a very important role to play in the nation building and to make India strong and bright, and I'm sure that you will do your role, अपने जिम्मेदारी और भूमिका आप ठीक तरफ से निभा के और पूरा हमारा देश को एक दुनिया का सबसे ऊपर लाने में पूरा मदद और आपका पूरा जो ध्यान देंगे और पूरा जोर लेंगे, ये पूरा मेरा उम्मीद है। आपको सबको एक बार और फिर होली का मुबारक देके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Very inspiring and a true practical experience you have brought for us. Sir, can I ask 2 questions for you? Yeah, which is right. Sir, in India, we have a tradition of sports from past, but still we are struggling to adopt these physical activities. So we are requesting an opinion on this, sir. No, you are absolutely right. The question is in English. I can reply in English. Yes, sir. So, basically the fault lies, I have mentioned that, the tradition, we had got a good system. We had our Gurukul system. If you trace the history, maybe our Nalanda Takshashila, where yoga was a part, martial arts was a part. The world's martial arts all developed from India. From the Bodhidharma, the monk took it from Agastya, and it was brought to Shaolin Temple, and all modern martial art came. So, but what happened was, during our pre-independence period, जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले हमको काफी जो है हमारा बाहर से अटैक आ गया है। There were a lot of invasion into India. There were a lot of, you can know that if you trace the history, you can find that we were under the colonial rule for 200-300 years. The French attacked, the Dutch attacked, the Mughals attacked. So there were a lot of attacks. So इस टाइम में जो हमारा जो पूरा अपनी जो चीजें थे, हमारा जो इंडिया में हम लोग ये अटैक में ज्यादा उसको डिफेंड करने में ज्यादा ध्यान देते थे। अपना जो इसमें ध्यान जो है हमारा ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना और उसको पूरा आगे तरफ ले जाने में काफी हमारे लिए मुश्किल पड़ा। हमारा जो संस्कृति है उसको तोड़ना ही उनका कई जो कॉलोनियल रूल का उसका उद्देश्य था, तो वो उसमें कामयाब नहीं हुआ।
हम उसको छोड़ा नहीं, लेकिन हमको काफी कष्ट टाइम से, बहुत बुरी तरफ से हमको, आप देखा होगा कितने लोग अपने योगदान, अपने बलिदान किया है भारत को, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो हमारा जो काफी कुछ मुश्किलें से हम गुजरा है, तो ये मुश्किल के समय में हमारा जो काफी कुछ चीज हम हो गया है या हम पूरी तरफ ले नहीं पाए। इसके अंदर एक चीज जो है हमारा फिजिकल कल्चर भी है, लेकिन अब उसका बदलाव आ रहा है। अब हम उसको फिर वापस लाने की कोशिश में। अब अगर आप नया एजुकेशन पॉलिसी देखेगा, उसमें अगर आप एक बार देखें, उसमें हम पूरा जोर है कि जो शारीरिक शिक्षा को भी पूरी तरफ उनको उनका प्रायोरिटी देके उसको बदलाव लेके उसको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा उनका नया एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया। मेरे ख्याल में ये आपके लिए आई थिंक दैट जस्टिफाइज योर क्वेश्चन एंड द रीजंस। Thank you, sir. So one more question. Mostly our PE teachers, one opinion has arisen that we are not competent with this European or foreign physical education professions. So how can we make them more competent? No, this is a wrong concept. अगर आप सोचते हो आप किसी से कम है तो ये बिल्कुल गलत है। You have got, आप अपनी देख लीजिए, अपना खुद ट्रेडिशनल हमारा गेम्स में देख लीजिए, आप अपने आप देख लीजिए। वी हैव गॉट अ वेरी गुड एंड ट्रेडिशनल लॉट ऑफ फिजिकल कल्चर भी इनफैक्ट। ये सारे चीज आपका जो है हमारा इस संस्कृति के साथ ही है, ये कुछ नया चीज नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को आप सिखा लेते हैं अपने जो इंडिजिनियस गेम्स है, आप देख लीजिए, कबड्डी देख लीजिए, खो खो देख लीजिए, जो मार्शल आर्ट जो जैसे कलरीपयट्टू देख लीजिए, कितना बढ़िया मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू जो साउथ में है। वो जो है 5 साल से लेके पूरा 18-20 साल तक पूरा उनका बेहतरीन उनका फिजिकल फिटनेस, उनका जो फिजिकल कल्चर है। थंगता है मणिपुर में, सिलंबम है तमिलनाडु में, मलखम है। तो ये जो चीज़ है हमारा ये संस्कृति में, हमारा इंडिजिनियस गेम्स में भी ये सारे चीज हमारा इसमें जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी आपका पास है। ऑल द इंफॉर्मेशन आप LNCP देख लीजिए, LNCP प्रोडक्ट्स आर बीइंग टॉट इन ऑल स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट्स। दे आर बीइंग टॉट अबाउट द लेटेस्ट स्किल्स एंड व्हाट एवर नो हाउ इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये सारे चीज आपको हर एक जानकारी जो है आपका फिंगर टिप्स में अभी आप मिल जाता है। हर सब्जेक्ट्स में काफी किताबें आए हुए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट स्पोर्ट्स के जुड़ा हुआ आप सीखना चाहते हो, लिटरेचर काफी है आपके पास, रिसर्च काफी आए हैं। तो ये कोई आपका ऊपर है आप कितना इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं है, आप जितना आप ज़्यादा आप ध्यान लेंगे, जितना आप ज़्यादा डिवोशन देंगे, जितना आप ज़्यादा टाइम लेंगे सीखने में, तो आप उसको उतने इंफॉर्मेशन ले आ सकते हैं। एंड मोर इंफॉर्मेशन मीन्स मोर यू आर पावरफुल एंड मोर रिसोर्सफुल। तो इसमें कोई हमारे देश के लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई कमी नहीं है। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम है या कम हम पीछे। हम बिल्कुल सबसे बेहतरीन है, सबसे आगे हैं। लेकिन ये अपने ऊपर होगा, आप कितने अपने आप को ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है। So it depends upon your own level of self-confidence and self-esteem. Never look down yourself. Thank you, sir. One more question is from Sarika. You are a good example for us also concerned to this physical activities. Participants, really I feel proud of my sir that concerned to physical activities, he's a great example for us, for our whole life. So question is from Sarika. She asks, after 45 years, what sort of physical activities can be preferred? Sarika is a teacher, she's a 45-year-old teacher. Maybe, sir, but okay. She has mentioned after 45 years. So I think, for 45 years is no age for a physical education teacher. You are quite young. आप बिल्कुल जवानी में है अभी, आप कुछ ये नहीं है, 45 years कुछ नहीं है। हाँ 45, लेकिन आपको ये देखना चाहिए आपका प्रेजेंट स्टेज में आपका जो हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर एक बार आप देख लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका 45 years में you can engage yourself in a variety of physical activities. There are many options. It depends upon your choice. What do you like? You like to play a game, or you like to do little jogging and exercise, or you like to do some swimming, or you like to do some cycling. You've got a variety of options.
or not even that, you like to do dancing, you like to have aerobic dance, you like to have rhythmic dance, you like to do Zumba. So you got a multiple options. Even not that you are liking martial arts, you can pick up that. You can pick up any game of your choice. But what is required fundamentally is that 45 years of age, what is your present health status you require. I may require some more details, or you can consult Dr. Usha. She is also a better expert who can give you personal guidance, personal inputs on what sort of activity you must follow. But I would like to tell in general that as far as physical education teachers are concerned, may it be 50, 60, 70, you are such, you should be active. You should be in the field. आपको सुबह शाम फील्ड में आना जरूरी है. आप फील्ड लोग हैं, आप लोग फील्ड में हैं, आप फील्ड में आइए. आप जो भी आपका मन से, आप देखिए मिल्खा सिंह जी जो है अब 90 साल से ऊपर है, वो बोलते हैं कोई गोली नहीं खाया अभी तक, कोई दवाई नहीं लिया है, सुबह लाके ट्रैक सूट पहनते हैं, दौड़ में निकलते हैं. ऐसे बहुत काफी फिजिकल एजुकेशन खेल शिक्षक जो है अभी भी 60 साल 70 साल उम्र है, 90 साल है, फिर भी आप फील्ड में जाके काम करते हैं, वर्किंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. तो हर एक के लिए ये है. आप कभी मत सोचिए कि अपने एज जो है एक ये नहीं है, कभी वो ये एक बारिंग नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं पहुंचना चाहिए आपका एक्सरसाइज की. तो आप अपने आप का ऊपर है. यू आर ओल्ड यंग, इवन इफ यू आर 60 ईयर ओल्ड नहीं, 60 ईयर रहेंगे, 45 ईयर ओल्ड नहीं है, 55 ईयर रहेंगे. तो सरिता जी आप बिल्कुल you should be very proud of yourself, and I thank you for the good words for me. You should keep yourself active and do your game, whichever game of your choice which suits you well, and take personal advice from anyone depending upon your current health status. Thank you so much. Thank you, sir. With your permission, I request to conclude this session, sir. Shall I conclude this one, sir? Please focus. So, thank you for enlightening us with your inspiring presentation. Your presentation stimulated our participants. I feel proud to say that because of you, we stood strongly in organizing these programs successfully, and your presentation brought some more colors and some more feathers to fly high and high. So please accept our thanks for a greater inspiring presentation on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women and Child Development, Khelo India, Fit India, sir. And your presentation was so beautiful that even questions were arised very less. Uttam विचार के लिए धन्यवाद सर. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Sanjeev. Thank you, everyone. Thank you for the patient hearing. Wish you all very best and wish you a happy day. Thank you, sir. Thank you.